یہ کہانی ہے ایک سول انجینئر کی جس کا نام ہے کم سو ہو، اور کیسے یہ دوسری دنیا میں ری انکارنیٹ ہو کر اس دنیا کو بدلنے والا ہے۔ اور لاسٹ پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ لوئڈ کے کچھ ورکرز کو ایک ڈارک میجیشین نے کڈنیپ کر لیا تھا۔ لوئڈ اور زیویئر نے وہاں پہنچ کر اسے مار دیا تھا اور ورکرز کو ریسکیو کیا تھا۔ اور اب آگے پارٹ 2 سٹارٹ ہوتا ہے جہاں سبھی ڈنجن سے نکل چکے ہیں۔ راستے میں ایک ورکر بہت تھکا ہوا تھا تو لوئڈ اس سے بیگ لینے کو کہتا ہے۔ وہ آدمی بتاتا ہے نہیں ماسٹر میں سنبھال سکتا ہوں۔ لوئڈ کہتا ہے کہ اگر تم سب بے ہوش ہو گئے تو مجھے تمہیں اور بیگ دونوں کو اٹھانا ہوگا، اب دو مجھے جلدی۔ پھر لوئڈ سبھی کے بیگز لے لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ماسٹر لوئڈ ہم اٹھا لیں گے، اور لوئڈ بتاتا ہے کہ یہ میرا آرڈر ہے اور اگر تم سب نے اور کچھ کہا تو تمہیں بونس نہیں ملے گا۔ یہ سن کر وہ سب خوشی سے رونے لگتے ہیں اور زیویئر سوچتا ہے کہ ماسٹر لوئڈ سچ میں ان کے لیے کیئر کر رہا ہے۔ ابھی ماسٹر لوئڈ ایک ایسے لیڈر بن چکے ہیں جس پر ہم سب بھروسہ کر سکتے ہیں۔ سسٹم لوئڈ کو بتاتا ہے کہ سبھی ورکرز آپ کے کام سے بہت خوش ہیں، اب آپ کی کہانی دور دور تک پھیلے گی۔ اینڈ لوئڈ بھی لائک اگر پیسے نہیں مل رہے تو مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں۔ اور پھر کچھ دن بعد سیوگ بنگو ریڈی ہے۔ آروش کہتا ہے کہ یہ تو صرف باہر سے تھوڑا ٹھنڈا ہے تو میٹ خراب ہو جائے گا اور ہمارے مسلز لاس ہو جائیں گے۔ لوئڈ کہتا ہے ہاں یہاں پر ابھی برف نہیں ہے، یہ جگہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ آروش کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ برف کیا ہے لیکن اس بنجر جگہ پر وہ نہیں ہے تو ہم بنا لیں گے، اور وہ کیسے؟ کچھ بھی کر کے بنا ہی لیں گے۔ آروش اسے دیکھ کر من میں کہتا ہے کیا وہ اینڈ کو مارنے والی کہانی جھوٹی تھی؟ نہیں اس نے میری جان بچائی ہے، میں اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتا۔ آروش چلا جاتا ہے اور زیویئر کہتا ہے اب آپ برف کیسے بناؤ گے؟ اچھا سوال ہے، اب ہم برف کیسے بنائیں گے؟ زیویئر اسے دیکھ کر کہتا ہے لگتا ہے اس بار اس کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ زیویئر اسے کہتا ہے آپ نے ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے، کیا آپ انہیں دھوکہ دو گے؟ لوئڈ کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے جو لوگ کامیاب نہیں ہوتے ان میں کیا کامن ہوتا ہے، وہ لوگ کبھی کوشش ہی نہیں کرتے، لیکن جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ یہی تو ہے انوویشن، یہی ہے ایک انٹرپرینئر کی سوچ۔ پھر لوئڈ رات کو یہی سوچ رہا ہوتا ہے پوڈنگ اور بیل جھیل سے پانی نکال رہے ہیں اور مولڈ میں بھر رہے ہیں۔ لوئڈ سوچتا ہے کہ اس دنیا میں آئس میجک ہے لیکن یہ کام کیسے کرتا ہے؟ میجک کی مدد سے یہ لوگ مانا کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جب میں مانا کو ایبزارب کرنے کی ٹریننگ کر رہا تھا میں نے یہ فیل کیا تھا اس دنیا میں الگ الگ طرح کے مانا ہیں جن کے الگ الگ پراپرٹیز ہیں، اور مجھے یہی تو نہیں پتا کہ مانا کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ پھر وہ پانی سے صرف گرم مانا کو ایبزارب کرتا ہے اور ٹھنڈی مانا کو چھوڑ دیتا ہے، پر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ زیویئر سوچتا ہے کہ بنا سوچے سمجھے کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کر لینا یہ کتنا لاپرواہ ہے، لیکن وہ ایک طریقہ ڈھونڈ رہا ہے، لگتا ہے اب اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور لوئڈ نے ایک نئی ایپلیکیشن ڈیولپ کر دی اسہن کو ٹیکنیک کے لیے، اور اس کے اسکل کا لیول اپ ہو جاتا ہے ڈبل سرکل لیول 2۔ پھر کچھ دن بعد چیف اور آروش ٹھنڈ سے کانپ رہے ہیں لوئڈ کی برف کی وجہ سے۔ اب ہمیں صرف انسولیشن لگانی ہے اور کام ختم۔ چیف کہتا ہے کمال ہے، اب ہمیں میٹ پھینکنا نہیں پڑے گا۔ آروش کہتا ہے اور ہمیں ہر دن شکار کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس خوشی میں آج رات پارٹی۔ لوئڈ زیویئر کو دیکھ کر کہتا ہے دیکھا انٹرپرینئر کی سوچ، اچھا ٹھیک ہے آپ صحیح ہو۔ پھر اگلے دن چیف اسے شکریہ کرتا ہے کہ ہم آپ کے احسان مند ہیں۔ لوئڈ دا ہیومن۔ لوئڈ بتاتا ہے کہ میں تو صرف اپنا کانٹریکٹ پورا کر رہا تھا۔ چیف کہتا ہے کہ ہم آرکس تم ہیومن جیسے نہیں ہیں، ہم بس ایک کانٹریکٹ کی وجہ سے چیزوں کو نہیں مانتے۔ سینڈ اینڈ اسٹیل ٹرائب والے تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے ہم اور لوئڈ فرنٹیرا ایک فیملی ہے۔ فرنٹیرا ہمارے دوست ہیں اور جو ان کے دشمن ہیں وہ ہمارے دشمن بھی ہیں، ہم ہمیشہ تمہارے لیے کھڑے ہوں گے۔ سسٹم بتاتا ہے کہ آرکس کی اپروول ریٹنگ تمہارے لیے بڑھ چکی ہے اور اسے 100 بونس RP ملتی ہے۔ لوئڈ بھی انہی کی طرح پوز کر کے کہتا ہے جلد ملیں گے سینڈ اینڈ اسٹیل ٹرائب۔ پھر ایک لمبے سفر کے بعد وہ لوگ فرنٹیرا کنگڈم پہنچ چکے ہیں۔ لوگ بہت ڈر رہے ہیں کیونکہ لوئڈ کے پاس 120 آرکس آئے ہیں۔ لوئڈ من میں کہتا ہے مجھے ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہوگی تاکہ ان کا ڈر تھوڑا کم ہو، اور لوئڈ کے پیرنٹس بھی ان سب کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ اور ڈارک میجیشن کو ہرا کر اور سارے سولجرز کو ریسکیو کرنے کے بعد سبھی لوئڈ کی تعریفیں کر رہے تھے اور اسے 300 بونس RP مل کر ٹوٹل 911 RP ہو جاتی ہے۔ پھر لوئڈ ان میجک ٹولز کو دیکھتا ہے۔ زیویئر کہتا ہے کچھ قیمتی ملا؟ تبھی لوئڈ بہت شوق ہوتا ہے اور بھاگ کر ٹنل کے پاس پہنچتا ہے اور ٹورٹس کو بلاتا ہے۔ ٹورٹس آ کر کہتا ہے کہ آپ مجھے ڈھونڈ رہے ہو؟ اوہ تم یہاں ہو، تمہارے لیے ایک گڈ نیوز ہے، تمہیں ہمارے کانٹریکٹ کے بارے میں یاد ہے؟ 520 سال کام کرنے والا، یہاں دیکھو اس میں ایک اسپیل ہے جس سے لاش گول میں بدل سکتے ہیں جو میں کنٹرول کروں گا۔ اس کا مطلب اب تم 520 سال کے لیے کام کر سکتے ہو۔ کتنی مزیدار بات ہے نا؟ اور وہ ابھی بھی چپ ہوتا ہے۔ کیا اس بات سے صرف میں ہی ایکسائٹڈ ہوں؟ جلدی سے ہنسو۔ اور پھر وہ روتے روتے ہنس لیتا ہے۔ پھر لوئڈ جاتے ہوئے کہتا ہے تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، اور پھر لوئڈ جاتا ہے بیرون سے بات کرنے، لیکن وہ اپنے کمرے میں نہیں ہوتا۔ ایک میڈ بتاتی ہے وہ ریسپشن روم میں ہے، کچھ مہمان آئے ہیں، مسٹر شیلو اینڈ مسٹر میٹ لوف۔ وہ پھر سے حرامیوں کی طرح
स्माइल करता है और मेट कहती है ये कैसा डरावना चेहरा है। रिसेप्शन रूम में मीट लोफ बताता है कि हमारी पॉलिसी के मुताबिक लोन का प्रिंसिपल एक ही बार में वापस लिया जाएगा, लेकिन सिर्फ इस बार हम एक खास अरेंजमेंट कर रहे हैं ताकि आप प्रिंसिपल का सिर्फ 10% हिस्सा चुका सके, और ये तभी होगा जब आप खदान के राइट्स हमें दे देंगे। ये आपके पेमेंट को कम कर देंगे, इसमें आपका ही फायदा है। अरे आप चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। तभी बाहर से लॉयड कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ प्लीज अंदर आओ, काफी वक्त हो गया, उम्मीद है आप दोनों ठीक होंगे। मीट लोफ कहता है इस बार हमारे पास ऑफिशियल इन्विटेशन है तो निकलो यहाँ से। हाँ पता है मुझे, आप दोनों बहुत समझदार हो, मैं तो बस सुन रहा था कि आप हमें कितना अमेजिंग ऑफर दे रहे हैं। क्या आपके सामने मैं अपना ऑफर रख सकता हूँ? मुझे तुम्हारे ऑफर से कोई मतलब नहीं, जल्दी करो और निकलो यहाँ से। पर लॉयड कहता है अब से हम अपना लोन छोटी छोटी किस्तों में देंगे और तुम्हें इंटरेस्ट रेट भी कम करना होगा। मैंने कहा ना निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारे ऑफर में कोई दिलचस्पी नहीं। ओह तो तुम दोनों मुझे बेकार ऑफर दे सकते हो लेकिन मैं नहीं, अब तुम दोनों मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तभी वहाँ आरोश आता है, कौन है जो मेरे फ्रंटेरा भाई को गुस्सा दिला रहा है? ये दोनों इसे देखकर डर जाते हैं। जो भी फ्रंटेरास के लिए मुसीबत खड़ी करेगा उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। फिर लॉयड बताता है इसके बारे में फिक्र मत करो, मेरे ऑफर के बारे में क्या ख्याल है? अगर तुमने मेरी ऑफर टुकराई तो बचोगे नहीं। और वो दोनों भाग जाते हैं। लॉयड कहता है मैं पूरा कर्ज भी माफ कर सकता था लेकिन ये एक क्राइम होता, इसलिए हमें इन चेंजेस के साथ एडजस्ट करना होगा। बेरोन थैंक यू कहता है। लॉयड बताता है ऑनडोल कंस्ट्रक्शन बिजनेस धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है और सॉफ्ट कोल का माइनिंग स्मूथली चल रहा है। थोड़े टाइम बाद हम कर्ज चुका पाएंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट को सेफ रखना। लेकिन अब हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऑर्क्स एक नॉर्मल इंसान से 10 गुना ज्यादा खाना खाते हैं, इन्हें खिलाने के लिए बहुत पैसा लगेगा और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम और भी कर्जे में डूब जाएंगे। फिर हमें एक और को दिखाया जाता है जो 24 घंटों से लगातार काम कर रहा है। वहाँ लॉयड आता है और कहता है इसे यहाँ से ले जाओ और कल भी इसे काम करने मत देना। वो और कहता है मैं आराम नहीं करना चाहता, मुझे मसल्स बढ़ाने हैं और इनकी वजह से काम 10 गुना तेज चल रहा है। फिर आरोश लॉयड से कहता है पैसे? हमें कोई पैसे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना चाहिए कि हमें पेट भर कर खाना मिले। और लॉयड बेरोन से कहता है कि हमें टैक्सेस को एक्सपोनेंशियली बढ़ाने होंगे, हमें पैसा चाहिए ऑर्क्स को मीट खिलाने के लिए। अगर हम माइंस की प्रोडक्टिविटी को देखें तो हमें कभी भी नुकसान नहीं होगा। बेरोन कहता है मुझे पता है तुम क्या कह रहे हो, पर उन लोगों के लिए पहले ही जीना मुश्किल हो गया है, हम टैक्सेस नहीं बढ़ा सकते। लॉयड कहता है कि बिना वजह बार बार टैक्सेस बढ़ाने को चोरी कहते हैं। कौन मेहनत करेगा अगर उसे सब छीन लिया जाए? बेरोन पूछता है कि तुम इसके बारे में क्या करोगे? लॉयड बताता है कि हमें लोगों को और ज्यादा पैसा कमाने देना होगा। हम मर्टीज के वेटलैंड्स को खेती लायक बनाएंगे और फिर वो जमीन हम लोगों को दे देंगे, उन्हें खुल के खेती करने देंगे और अच्छा पैसा कमाने देंगे ताकि वो ज्यादा टैक्स दे सके। फिर जेवियर और लॉयड वहाँ आते हैं जहाँ जेवियर लॉयड से पूछता है ये जगह 100 साल पुरानी है, हम यहाँ खेती कैसे करेंगे? लॉयड बताता है कि मेरे पास प्लान है, तुम बस इंतजार करो। और वो मन में कहता है इन्हें मुझे यही बताना होगा कि मेरे पास प्लान है, पर असल में ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर रात को वो सोचता है कि इतनी बड़ी जगह में कई तरह के वेरिएबल्स होंगे, मुझे इसे कुछ ऐसे बनाना होगा जिससे बारिश का पानी निकल सके। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे ऐसे हाथ से ही बनाना होगा। फिर वो बहुत कोशिश करता है लेकिन कुछ काम नहीं आता और फिर 21 दिन बीत जाते हैं और लॉयड अभी भी कामयाब नहीं होता। बेरोन जेवियर से पूछता है कितने दिन हो गए? वो बताता है 21 दिन। वो ना ठीक से खा रहा है ना आराम कर रहा है, क्या मैं उसे रोक दूं? बेरोन कहता है नहीं, मैं उसका फादर हूँ, फिर भी मैं उससे नफरत नहीं करता। मैं हमेशा सोचता कि कब वो एक असली मर्द बनेगा या बन भी पाएगा, लेकिन अब वो एक अलग इंसान बन चुका है। वो अब बहुत मेहनती बन चुका है, मैं उसकी कोई मदद तो नहीं कर सकता लेकिन उसके रास्ते में रुकावट भी नहीं बनना चाहता। जेवियर कहता है ये एक अच्छा फैसला है माय लॉर्ड, अभी के मास्टर लॉयड एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जो कभी हार नहीं मानते जब तक अपना वादा पूरा नहीं कर लेते। और बेरोन का अप्रूवल रेटिंग बढ़ जाता है जिससे उसे 20 आरपी मिलती है और करंट आरपी 931 हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद वो फाइनली कामयाब हो जाता है। वो चिल्ला कर कहता है ये निकल रहा है, पानी निकल रहा है और अब पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। और वो गिर जाता है, मन में कहता है मेहनत तो बहुत लगी लेकिन पहली जिंदगी में रात भर कंस्ट्रक्शन का काम करने से तो आसान ही था। और इन एफर्ट से उसे एक नई स्किल मिलती है जिससे उसे जमीन का सर्वे करके जो डेटा मिलता है उसे एक वर्चुअल सिमुलेशन बना सकता है। और वो उसमें कुछ गड़बड़ कर देता है और सिस्टम को चिल्ला कर कहता है तुमने इसके बारे में तो नहीं बताया था, मुझे ऐसे बनाने में जान चली गई। सिस्टम बताता है तुमने तो कहा था ये आसान था, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, असल में तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। मुझे अभी भी नहीं पता मेरी क्या विश थी जो मुझे इस दुनिया में लाया गया। मुझे तो बस कॉलेज पूरा करना था और लाइसेंस लेकर एक अच्छी कंपनी में काम करना था ताकि मुझे पैसों की प्रॉब्लम ना हो, बस यही मेरी विश थी। सिस्टम बताता है वो तो सिर्फ गोल्स थे, एक विश बहुत ज्यादा गहरी होती है, एक असली विश किसी भी लिमिट में बंदी नहीं होती। लॉयड कहता है तुम तो बस बकवास कर रहे हो, तो छोड़ो वो सब, मुझे बहुत काम है। फिर सुबह वो बताता है मर्टीज वेटलैंड्स प्रोजेक्ट का पहला स्टेज, तुम दोनों पूरे वेटलैंड का पानी हटाओगे, पर ये काम सिर्फ तुम दोनों के लिए बहुत ज्यादा होगा, इसलिए मैं तुम दोनों के लिए एक नया
दोस्त बुला रहा हूँ। फिर वो समनिंग करता है और मन में कहता है कि मुझे पोडिंग और बिल की तरह एक पेट चाहिए ताकि पानी को हटा सके। तभी वहाँ से एक पेट बहुत तेजी से आता है और लॉयड की नाक पर लगता है और इसका नाम है हमंग। फिर वो तीनों नाचने लगते हैं। तभी लॉयड कहता है बीच में आने के लिए सॉरी और तुम्हारा इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल सकता है, और वो मुंह से चिट्ठी निकालता है और लॉयड कहता है अब तो मुझे इसकी आदत हो चुकी है। वो देखता है कि हमंग सनफ्लावर सीड से बड़ा नहीं हो सकता, इस बार तो मुझे बहुत बेकार पेट मिला है। वो फिर से समनिंग करता है लेकिन सिस्टम बताता है तुम एक दिन में सिर्फ एक ही समनिंग कर सकते हो। बिल और पोडिंग लॉयड पर बहुत गुस्सा होते हैं। लॉयड कहता है क्या कहा, मैं बुरा इंसान हूँ? देखो हमें अगले प्रोजेक्ट के लिए कोई बड़ा चाहिए। हमंग बहुत छोटा है और वो सब हड़ताल पर उतर आते हैं। ठीक है तुम दोनों डरा रहे हो मुझे, तो बताओ तुम्हारी स्किल्स क्या हैं? और उसका स्किल है वन शॉट, एक बार में ही तुम पानी पी सकते हो और जितना तुम संभाल सको। मुझे तो लगा था ये परफेक्ट स्किल होगा पर मैं इतना लकी नहीं हूँ। फिर हमंग से कहता है ठीक है अब दिखाओ मुझे। वो पानी पीने लगता है और पीता ही जाता है। थोड़ी देर बाद वो पानी से मोटा हो गया है। लॉयड कहता है क्या ये पहले से बड़ा लग रहा है? और पानी पीता ही रहता है। लॉयड उसे नीचे देख रहा होता है और फिर उसे ऊपर देखता है कि हमंग बहुत बड़ा हो चुका है पानी पी कर, और वो सारा पानी पी लेता है और जमीन साफ हो गई है। थोड़ी देर बाद लॉयड शॉक उठता है, क्या ये इतनी जल्दी इतना सारा पानी पी सकता है? ऐसे में तो हम ये 2-3 दिनों में खत्म कर लेंगे। पोडिंग और बेल लॉयड पर हंस रहे हैं। फिर लॉयड कहता है ओ मैसेंजर क्या ये रैंडमली होता है? हमेशा मुझे वही स्किल मिलता है जो मुझे चाहिए होता है। सिस्टम बताता है जब कोई दूसरी दुनिया में जाता है तो यूजुअली उसके पास एक स्पेशल स्किल होती है, लेकिन तुम एक इंसान हो बिना लक और बिना स्किल के, सिर्फ प्रॉब्लम्स की प्रॉब्लम्स। शायद तुम्हारी स्पेशल स्किल ये है कि तुम रैंडम समन्स में लकी हो जाते हो, या शायद नहीं। लॉयड कहता है तुम तो बिल्कुल ही अनक्लियर हो, तुम ट्राई भी कर रहे हो और कल से हम मर्टीज वेटलैंड को रिक्लेम करना शुरू करेंगे। तो पहले हमंग वेटलैंड से सारा पानी पी लेगा, फिर पानी को समंदर में फेंक देगा और छोटा होकर फिर से वही करेगा। फिर हम घास और कचरे को हटाएंगे। फिर जेवियर हर जगह माना ब्लास्ट करके होल करेगा और बेम्बू लगाएंगे। हम एरिया को सैंड से भर देंगे ताकि एक सैंड बैंक बन जाए और पोडिंग मिट्टी को दबाकर उसे मजबूत करेगा। जमीन से पानी बाहर निकालने के लिए हम बेम्बू स्टॉक्स को स्ट्रो की तरह यूज करेंगे और फिर हमंग वन शॉट में सारा पानी पी लेगा। उसके बाद मैं अपने अपग्रेडेड सिमुलेशन स्किल का यूज करके जमीन को लेवल अप करूंगा। फिर 10 दिन बाद वो एक सेक्टर कंप्लीट कर लेते हैं और लॉयड चिल्ला कर कहता है अभी भी बहुत सारा काम बचा है और जब सब खत्म हो जाए तब होगा बोनस पार्टी। यह सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। जेवियर मन में कहता है ये तो सच में खेती की जमीन लग रही है, पहले ये कितनी बंजर थी और मैं कब से ये काम करने लगा, मैं एक नाइट हूँ। तभी लॉयड आकर कहता है ये बीच वहाँ दूर बोन लो। जेवियर कहता है कि मैं एक नाइट हूँ, मैं ये काम क्यों करूँ? लॉयड बताता है कि ये पतंगों से छुटकारा पाने के लिए है, तुम्हें हमें उनसे बचाना नहीं है नाइट। और जेवियर हाँ कर देता है और फिर जेवियर मन में कहता है उसने मुझे फिर से फंसा लिया, अगली बार ऐसा नहीं होगा। तभी पीछे से बेरोन कहता है वो सच में इन दलदलों को खेतों में बदल रहा है। इस इलाके के सभी लोग यही सोच रहे होंगे कि ये एक चमत्कार है और सभी वर्कर्स लॉयड के इस काम से बहुत खुश हैं, जिससे उसे 450 बोनस आरपी मिलती है और करंट आरपी 1281 हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद थोड़ा सा फसल उग चुका है और जेवियर भी इससे बहुत खुश है। तभी लॉयड कहता है अब हमें बस एक वाटर व्हील बनाना है और फिर हम सच में काम खत्म कर लेंगे। जेवियर कहता है ये वाटर व्हील क्या है? लॉयड बताता है कुछ ऐसा जो बारिश के पानी को निकाल सके, वरना ये सारी जमीन पानी के नीचे चली जाएगी। तभी वहाँ विस्कॉन्ट लोकोना आता है। उनका नाइट कहता है इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज कौन है? जेवियर कहता है थोड़ा तमीज से बात करो। लॉयड उसे रोकता है और कहता है वो मैं हूँ, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? वो नाइट बताता है कि आपको नहीं पता ये जमीन विस्कॉन्ट लोकोना की है, जल्दी से ये जगह छोड़ दो। तो 100 सालों से किसी ने भी इस बंजर जमीन पर कदम भी नहीं रखा। नॉर्थर्न एरिया विस्कॉन्ट लोकोना के अंदर आता है और साउथर्न एरिया फ्रंटेरा किंगडम के अंदर आता है। ये फैसला एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया गया था और विस्कॉन्ट ने इंतजार किया कि कब ये जमीन उपजाऊ होगी और ये उस पर हक जताने आ गया। वो बिना मेहनत के इस जमीन पर कब्जा करना चाहता है और लॉयड मन में कहता है नॉर्थ एरिया का वेटलैंड वाकई में उसका है। फिर उन्हें बताता है तो तुम सब कह रहे हो कि हम आपकी जमीन पर बिना इजाजत के घुस गए हैं। उनका नाइट कहता है लॉर्ड को ये उनके एल्डर से मिली है। तभी लॉर्ड उसकी बात काटता है तुम देख नहीं रहे, नोबल्स बात कर रहे हैं, अपना मुंह बंद रखो। ये सुनकर वो नाइट बहुत गुस्सा होता है। फिर लॉयड बताता है कि मैं बेरोन फ्रंटेरा का बड़ा बेटा लॉयड फ्रंटेरा हूँ। विस्कॉन्ट बोलता है मैंने तुम्हारे बर्ताव के बारे में सुना है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, अपने फादर को बुलाओ। जेवियर सोचता है कि ये कितना बदतमीज है। लॉयड भी ऐसा एक्ट करता है जैसे उसे कुछ नहीं पता। विस्कॉन्ट कहता है क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? जल्दी अपने बाप को बुलाओ। लॉयड बोलता है हाँ मैं सुन रहा हूँ। एक तंग करने वाली मक्की की आवाज। क्या मक्की? कहाँ है मक्की? उनका नाइट कहता है वो आपका मजाक उड़ा रहा है क्या सच में? लॉयड कहता है किंगडम का लैंड एक्ट टाइटल 321 कहता है कि बंजर जमीन की डेवलपमेंट के लिए कुछ खास छूट दी गई है। विस्कॉन्ट कहता है
है रुको तुम, 1 मिनट रुको। लॉयड उसे इग्नोर करते हुए कहता है क्लॉज 1, ये लो पुरानी बंजर जमीन के विकास के लिए है और वापस हासिल की गई जमीन के मालिक होने का स्थापना करता है। और विस्कॉन कहता है अरे बस करो, मेरी बात सुनो। पर लॉयड उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और बताता है क्लॉज 2, बंजर जमीन वो होती है जो 100 सालों से छोड़ी गई हो, जहाँ ना कोई रहता हो और ना ही कोई खेत हो। क्लॉज 3, जो भी जमीन इन बातों को पूरा करता हो उस जमीन को विकास करने वाले का अधिकार माना जाएगा। पहला, जमीन का विकास एक क्लियर पर्पस के साथ मेहनत लगाकर किया गया हो। दूसरा, जमीन पर रहने लायक एक घर बना लिया हो। तीसरा, जमीन पर लंबे समय से खेती की गई हो। और चौथा, जमीन पर किसी एक फसल का पल हो। और जेवियर को भी समझ आ जाता है कि लॉयड ने क्यों उसे बीज बोने को कहा था। फिर लॉयड कहता है मुबारक हो, तुम मर्टीज वेटलैंड का पहला पल खा रहे हो, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा, मैं कितना अच्छा हूँ, है ना। और विस्कॉन्ट मन में कहता है ये बदमाश कहाँ से आ गया, क्या ये सब इसने पहले से ही सोच लिया था। ये लो आपके लिए एक तोहफा है, क्या अब तुम सब मेरी जमीन से निकलोगे। और वो गुस्सा होकर चले जाते हैं। फिर जेवियर कहता है क्या आपने ये प्रेडिक्ट किया था कि वो लोग आने वाले हैं। लॉयड बताता है कि ये पहली बार नहीं है कि मैं ऐसे लोगों से निपट रहा हूँ जो दूसरों की मेहनत चुराने की कोशिश करते हैं। तभी सारे वर्कर्स चिल्लाकर कहते हैं मास्टर लॉयड के लिए तालियां बजाओ। ओए चुप रहो, तुम सबको इसके पैसे नहीं मिलने वाले, अब जल्दी से काम पर लगो। फिर गर्मियाँ खत्म होती है और बारिश का मौसम आ जाता है, लेकिन लॉयड घर नहीं जाता और अपने फसल का ध्यान रखता है। वो मन में कहता है कि मुझे देखना है क्या मर्टीज वेटलैंड वाकई काम का हो सकता है। फिर बारिश खत्म होती है और फिर भी उसका खेत सही सलामत है। सिस्टम बताता है कि आपने कंस्ट्रक्शन में इतना बड़ा काम किया है, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। और उसे रिवॉर्ड में एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं और उसका सर्वेइंग स्किल और डिजाइन स्किल 2 लेवल्स अपग्रेड हो जाते हैं। और सभी के इंप्रेशन लॉयड के लिए 5 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। करंट आरपी है 355। लॉयड कहता है सब हो गया, चलो अब अगले स्टेज की तरफ चलते हैं। फिर हमें लुकोन विस्कोंटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ विस्कोंट कहता है क्या रिक्लेम जमीन के लिए माइग्रेशन। एग्जीक्यूटिव बताता है वो जमीन को मुफ्त में दे रहे हैं, वो भी 3 साल के लिए पूरी प्रोटेक्शन के साथ, और बदले में उन्हें वहाँ 5 साल तक रहना होगा। विस्कोंट कहता है इसका मतलब वो आखिरी 2 साल जमीन को सही करने में लगाएंगे और फिर वो लोग वहाँ का मालिक बन जाएंगे। वो जगह एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जैसी है। ये सब सोचकर उसे बहुत जलन होती है, मैं अपनी जमीन को उन्हें ऐसे ही नहीं देने वाला। और फिर वो उस बंदे से कहता है वर्कशॉप के सुपरवाइजर को बुलाओ। फिर कुछ दिन बाद लॉयड सोकर उठता है और उसके सर में दर्द हो रहा है और वो सोचता है कि ये ज्यादा काम करने की वजह से हुआ, आज मुझे बहुत काम है। फिर जेवियर से कहता है ओए जल्दी उठो, मुझे काम पर जाना है। और उसके सर में भी दर्द हो रहा है, ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ। नहीं रुको, ये नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं कि इमिली और सारे गांव वालों के सर में दर्द हो रहा है और सारे जानवरों के भी। लॉयड कहता है ये सब पर असर कर रहा है, जानवरों पर भी। और मन में कहता है मुझे पता है जरूर ये पानी की वजह से हुआ है, मेरा सबसे बड़ा वेपन है इस दुनिया के बारे में सब कुछ पता होना। लेकिन उन वाइल्ड एंड्स के इंसिडेंट के बाद मुझे एहसास हुआ कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो नॉवल में नहीं दिखाई गई थी। मुझे लगता था विस्कोंट लोकोना मर्टीज वेटलैंड वापस लेना चाहेंगे, इसलिए मैंने उनके बारे में रिसर्च किया। लोकोना रीजन की मेन इनकम सोर्स है उनकी मिस्टीरियस डाइंग टेक्नोलॉजी, और वो लोग डाई को लोडोना बेरी से बनाते हैं। लोकोना वो हरामी इंसान, उस हरामी को मैं छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ बेरोन के पास विस्कोंट का नाइट बैठा है और बताता है हमें आधा वापस किया वेटलैंड दे दो, अगर तुम ऐसा करोगे तो हम पानी में डाई मिलाना छोड़ देंगे। यह सुनकर बेरोन कहता है तुम्हें पता है अभी तुम जो कह रहे हो वो धमकी है। हाँ सही कहा, इसे एक धमकी ही समझो। क्या तुम्हें लो से डर नहीं लगता? मैं तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगा। हाँ खुशी से ले जाओ, लेकिन फैसला आने में 2 साल लग जाएंगे और इतने वक्त तक ताजा पानी के हर्जे के सामने तुम टिक पाओगे? ठीक है, तो मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा। वो जाने लगता है और बेरोन कहता है मेरे बेटे ने और मेरे लोगों ने खून पसीना बहाया है उस जमीन पर, मैं तुम जैसे इंसान को वो कभी नहीं दूंगा। वो जाने वाला होता है लेकिन तभी लॉयड दरवाजा तोड़कर उसे दीवार से चिपका देता है और कहता है सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है, लगता है हमारे कुत्ते जैसे पड़ोसी हमारे पानी के साथ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तभी विस्कोंट का नाइट कहता है तुमने मेरे लॉर्ड को गाली दी? ओ मुझे नहीं पता था कि कुत्ते इंसान की बात भी समझ सकते हैं। यह सुनकर वो आग बगूला हो जाता है, तुमने 2 बार एक नाइट की इंसल्ट की है, मैं तुम्हें ड्यूएल के लिए चैलेंज करता हूँ। और कुछ देर बाद वो हार चुका है और लॉर्ड उसे पीट रहा है। अरे बस करो, मैं हार गया, अच्छा ठीक है अब मैं सेटिस्फाई हूँ। और फिर से उसे मारने लगता है और कहता है ये मेरे डेड की बेइज्जती के लिए है। और बेरोन हंसते हुए कहता है अरे बस करो, ड्यूएल खत्म हो चुकी है। और अंदर से बहुत खुश हो रहा था। और जेवियर मन में कहता है मैंने कभी इन्हें ऐसे नहीं देखा। और फिर लोकोना में विस्कोंट से कहता है मैंने तुम्हें उसे धमकी देने भेजा था, लेकिन तुम तो खुद ही मार खा कर आ गए। नहीं रुको 1 मिनट, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया है। बेरोन से अब हमें कोर्ट ले जा सकता है, हम उस पर लड़ाई का झूठा इल्जाम लगाएंगे जिसकी वजह से ये केस सॉल्व होने में 3
नहीं 4 साल लग जाएंगे। और लॉयड भी उसी की तरह फेस बनाकर कहता है वो अभी यही सोच रहा होगा, लेकिन हम कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे, हम अपनी तरीके से उन्हें चकमा देंगे। हमने इस जमीन पर अपना खून पसीना बहाया है। यह सुनकर सभी जोश में आ जाते हैं। फिर सभी रिजर्वियर बनाते हैं पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हामांग उसके लिए ऊपर किसी लेक से पानी लाता है। जेवियर कहता है ये एक अच्छा सोल्यूशन है मास्टर लॉयड, लेकिन इसकी वजह से आप दोनों आराम नहीं कर पाओगे। लॉयड बताता है तुम सही कह रहे हो, ये सिर्फ एक टेम्पररी हल है। हम एक वाटर सप्लाई सिस्टम बनाएंगे, हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले हैं ताकि ईस्ट की पहाड़ों की लेक से पानी लाया जा सके। जेवियर कहता है पर फासला बहुत ज्यादा है। लॉयड बताता है यही तो प्रॉब्लम है, मैं इंश्योर करूंगा ताकि मुझे 10 गुना नहीं 100 गुना ज्यादा मुनाफा मिले। फिर कुछ महीने बाद विस्कॉन्ट बहुत डरा हुआ है। एग्जीक्यूटिव कहता है बेरोन फ्रंटेरा के बड़े बेटे ने आपसे मिलने की दरख्वास्त की है। वो कहता है मैं बिजी हूँ, उन्हें बोलो चले जाए। और वो कह रहे हैं कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फिर वो मान जाता है और लॉयड से मिलता है। अरे वाह माय डियर विस्कॉन्ट, आप तो बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो। विस्कॉन्ट कहता है तुम क्या चाहते हो? लॉयड बताता है आपने नहीं सुना, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूँ। क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे चलिए अब ईमानदारी से बात कीजिए, शायद मैं आपका वर्कशॉप बचा सकता हूँ। मुझे लगा ही था ये तुम्हारा ही काम है, तुम ही हो जिसने मेरी वर्कशॉप बर्बाद की है। लॉयड कहता है तुम्हारी वजह से हमें काफुआ लेक से पानी लाना पड़ा, इसके लिए शुक्रिया। पहले हमें पता भी नहीं था कि तुम ये सब कर रहे हो। वो तो तुम्हारा नाइट बहुत मेहरबान था हम पर, हमने लेक से अपनी जमीन तक पानी का रास्ता बनाया। विस्कॉन्ट गुस्से से कहता है बस करो अपनी बकवास, ये बताओ तुमने मेरे वर्कशॉप के साथ क्या किया? और लॉयड कहता है हमारे रास्ते में एक बहुत बड़ी घाटी थी और हमने वही किया जो जरूरी था, और कोई ऑप्शन था ही नहीं। हमने वहाँ एक रोमन स्टाइल एक्वाडक्ट बनाया, हमने माइलस्टोन्स कलेक्ट किए बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए, लेकिन कुछ घाटी के नीचे दब गए और फिर हमने एक्सपोजिंग रोक दी। और विस्कॉन्ट कहता है बस करो, इन सब का मेरे वर्कशॉप से क्या लेना देना? और लॉयड बताता है उस घाटी का पानी तुम्हारे वर्कशॉप तक जाता है और उस पानी में चूना है जिससे कपड़ों का ये हाल हुआ है। फिर विस्कॉन्ट कहता है तुम बदतमीज, तुम्हें लॉ का कोई डर नहीं, मैं तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगा, पर फैसला आने में कम से कम 2 साल लगेंगे, तब तक कोई बचा होगा जो तुम्हें याद रखेगा। ठीक है अब मैं चलता हूँ। और विस्कॉन्ट कहता है तुम गलत आदमी से पंगा ले रहे हो, तुम्हें पता भी है मैं रॉयल कोर्ट में किन किन लोगों को जानता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और लॉयड बाय कहकर चला जाता है। रास्ते में जेवियर कहता है आपने तो उसे और गुस्सा दिला दिया, अब वो कोर्ट में हमसे लड़ता रहेगा। उसके सच में रॉयल कोर्ट में बहुत ज्यादा कनेक्शंस हैं, अगर ये सब हुआ तो खर्चा और भी बढ़ जाएगा। और लॉयड बताता है बस तुम देखते जाओ। फिर 1 महीने बाद विस्कॉन्ट लॉयड से माफी मांग रहा है कि प्लीज मेरे वर्कशॉप को बचा लो। लॉयड बताता है कि तुम्हारे उन रिश्तेदारों ने बताया नहीं कि तुम ये केस नहीं जीत सकते, प्लीज माफ कर दो मुझे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और लॉयड बताता है मुझे तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं अपनी शान छोड़कर तुमसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। शान इसकी कोई भी कीमत नहीं है, अगर है भी तो मैं उसे 1000 बार बेच दूँ। मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे बस एक साइन चाहिए। अगर तुम इस पर साइन कर दो तो हम 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे वर्कशॉप को पानी देना शुरू कर देंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर विस्कॉन्ट के पसीने छूट जाते हैं और चिल्लाकर कहता है ये कीमत तो बहुत ही ज्यादा है, और क्या पानी पर भी कीमत लगाई जा सकती है? जिसने मुझे सिखाया था कि पानी मुफ्त नहीं होता वो तुम ही थे, है ना? और वो बहुत ही डर जाता है। फिर कुछ वक्त बाद बेरोन कहता है क्या सच में हर महीने हमें इतनी रकम मिलेगी? लॉयड कहता है बिल्कुल सही, विस्कॉन्ट ने इस पर खुद साइन किया है। और बेरोन कहता है इन पैसों से तो हम आसानी से कर्ज दे सकते हैं, फिर भी बहुत ज्यादा पैसे बच जाएंगे। जेवियर मन में कहता है ये लड़ाई विस्कॉन्ट ने शुरू की पर मास्टर लॉयड ने खत्म कर दी, और अभी ये एक शैतान लग रहा है। और उस कॉन्ट्रैक्ट में किसी खत्म होने की तारीख का जिक्र ही नहीं था। जब तक वो जिंदा रहेगा हम उसका फायदा उठाएंगे और उसके आने वाली जनरेशन से भी। और लॉयड मन में कहता है अब मैं उसे छोटी सजा देकर माफ नहीं करने वाला। और बेरोन कहता है तुम्हारे लिए एक अच्छी न्यूज है, वैसे तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तुम मुझे बहुत डरा रहे हो। अरे माफ करना, मैं तो बस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से खुश था। और बेरोन बताता है जो खजाना तुम्हें और ट्राइब से मिला था काउंट क्रेमो उसे अच्छी कीमत में खरीदने को तैयार है। लॉयड कहता है ये तो बहुत अजीब बात है, उस जैसे बड़े आदमी के लिए ऐसे ब्रांड न्यू पीसेस खरीदना कोई बड़ी बात तो नहीं है। बेरोन बताता है कि वो एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाना चाहता है और ये है सिटी ऑफ कॉमर्स, ये है यहाँ के किंग काउंट क्रेमो। वो समंदर को देखता है जहाँ से निकलता है मॉन्स्टर गीगा टाइटन। एंड विद दिस द ग्रेटेस्ट डेवलपर मानवा का पार्ट 2 एंड होता है। कमेंट फॉर द नेक्स्ट पार्ट, नाउ यू कैन वॉच दिस मानवा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।